Okay. In that case, let's start. Okay. Now, before is the audio laggy? Okay. Just check the internet on your end. The platform is pretty much well tested and well checked out. So, in case you are feeling anything around, let's say you feel that the audio is a bit laggy or something, please check the internet on your end. Most of us are on wireless connections. So, refreshing the page also sometimes helps. Okay. So, first of all, welcome to the MERN Stack Development course, guys. सबसे पहले तो सबका स्वागत है. Welcome to the MERN Stack Development course on AlgoCAD. ठीक है. आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि व्हाट्स द कोर्स ऑल अबाउट, क्या एक्सपेक्टेशन रहनी चाहिए तुम्हारी इस कोर्स से, क्या एक्सपेक्टेशन रहनी चाहिए मेरी और रिया की इस कोर्स से एज एन इंस्ट्रक्टर टू द कोर्स. ठीक है. यू गाइस आर द लर्नर्स, सो आई एम नॉट सेइंग यू आर स्टूडेंट्स, यू आर लर्नर्स, राइट. सो एज अ लर्नर व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन, इस सब चीजों के ऊपर हम लोग बात करेंगे, राइट. So first of all, like who we are, like why me along with Ria are going to be the one who will be teaching you. So we are software engineers. मतलब एक जो good selling point that we keep is we are active working software engineers, right? Me currently, I currently work as software engineer too at Microsoft. We also work as a software engineer at Microsoft, right? We have been working as software engineers continuously for the past 4 years. As a full-time engineer, and prior to that also we did some internship, did some open source work. So we have been in the industry, I would say, for 6-7 odd years, right? We have seen like the highs also, the neutrals also, the lows also of the overall industry. ठीक है. तो काफी सारी हमने seasons देख लिए हैं, to be very honest, right? So I previously worked with Google. I'll give you a full, I would say, in-depth introduction as well. But till now हम लोगों ने 30,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं offline. Like I started in 2018 teaching people offline, then college workshops, then COVID came up, somebody ate a bat and we had to be on our home, and then we started teaching online. Online भी हमने YouTube sessions, live sessions, recorded lectures throughout like different mediums से 30,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ाए. Data structures and algorithms में CS fundamentals, computer networks, operating systems, database management system, one of my favorite, system design, full stack development, majorly web development, right? और इससे पहले I've worked with big ed tech people like Scalar, Relevel, Unacademy, etc. Right? So this is like overall our background of all the people who are currently working at AlgoCAD, right? Now, what are the things that we want to majorly encounter? We want to encounter the first challenge, that is of in-depth knowledge. मतलब अभी के time में, if you will see most of the people who are learning new things, they try to go with a very wide, or I would say the width of the knowledge instead of the depth of the knowledge. मतलब तुम में से बहुत सारे लोगों को जावास्क्रिप्ट शायद बहुत पहले से आता होगा. तुमने मे बी बहुत सारे तुम में से लोग होंगे जिन्होंने प्रोमिसेस पढ़े होंगे, एसिंक अवेट पढ़े होंगे, बट तुम में से बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जिनको अगर मैं एसिंक अवेट की फंक्शनैलिटी जावास्क्रिप्ट में से हटा दूं और फिर कहूं कि एसिंक अवेट जैसा सिंटैक्स खुद से बनाओ, तो तुम शायद ना बना पाओ, राइट? तो डेप्थ जो नॉलेज की है उसको वी वांट टू काउंटर. कि यार मतलब कुछ भी चीज पढ़ रहे हैं ना, मतलब माई एसक्यूएल भी पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ माई एसक्यूएल की क्वेरी पढ़ने से बेटर है कि देखा जाए कि माई एसक्यूएल में एक्चुअल प्रोडक्शन में क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, ट्रांजैक्शंस कैसे मैनेज हो सकती हैं. अगर एसिड प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं तो बस एसिड की डेफिनेशन पढ़ने से बेटर है कि माई एसक्यूएल में एसिड कैसे लगाया जाता है वो पढ़ाया जाए, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है. The second challenge that we are trying to encounter is to make sure that the technical knowledge is affordable and accessible. मतलब इस पर्टिकुलर कोर्स को भी तुम देखोगे तो वी आर टीचिंग बैकएंड, फ्रंट एंड, DSA, a part of DevOps, बहुत सारी चीजें, प्लस विद लाइव लेक्चर जहाँ पे मतलब 2 full-time सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, मतलब हमारे लाइव लेक्चर आने की भी like there is a time commitment that we have to give, that we are actually combining all throughout in this course. ठीक है. और चैलेंज नंबर 3 कि जो एक्चुअली चीजें इंडस्ट्री में होती हैं वो पढ़ाई जाए, रादर देन कि तुम क्रड ऐप. मतलब अभी अगर तुम देखोगे मोस्ट ऑफ द टाइम तुम 300 रुपए का कोर्स ले लो, तुम 3 लाख का कोर्स ले लो, तुम ये समझ लो कि मैंने हर जगह काम करा है. और मैंने एक चीज सीखी है कि अगर तुमसे कोई कहेगा कि फूड डिलीवरी ऐप बनानी है, तो उस फूड डिलीवरी ऐप में तुम टेक्निकली एक ई-कॉमर्स ऐप ही बना रहे होगे, जहाँ पे तुम प्रोडक्ट बनाना सीख जाओगे, प्रोडक्ट को डिलीट करना सीख जाओगे, प्रोडक्ट को अपडेट करना सीख जाओगे, प्रोडक्ट को रीड करना सीख जाओगे. मतलब तुम क्रड सीख जाओगे, बट उससे ऊपर कोई नहीं होता, ना ही कोई पढ़ा रहा होता है, राइट? कुछ लोग हैं जो पढ़ा भी रहे होंगे, आई बिलीव, बट मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल जस्ट मेक क्रड्स, मेक फ्रंट एंड ऑफ द क्रड एंड दैट्स इट. दैट इज नॉट एक्चुअली व्हाट यू हैव टू डू इन एक्चुअल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब. उसमें बहुत सारी और चीजें होती हैं.
मैसेज क्यूज को हैंडल करना पड़ता है, यू हैव टू हैंडल लॉट ऑफ प्रोडक्शन इश्यूज, यू हैव टू हैंडल लॉट ऑफ डेटाबेस रिलेटेड थिंग्स। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक्चुअल तुम्हें इंडस्ट्री में करनी पड़ेंगी बट तुम्हें नहीं पढ़ाई जाती। फॉर एग्जाम्पल मतलब कॉलेज में भी नहीं पढ़ाई जाती, कॉलेज में तो तुम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। जैसे मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, तुम में से कई लोग होंगे जो कंप्यूटर साइंस और रिलेटेड डिग्री में होंगे, जैसे बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीसीए, बीटेक कंप्यूटर साइंस, बीटेक आईटी, इस टाइप की फील्ड्स में होंगे, या तुमने डिग्री करी होगी या किसी को डिग्री करते हुए देख रहे होगे। उन सबके पास एक सब्जेक्ट होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में पढ़ाया जाता है ना कॉलेज में, वो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि वो तुम बस बुक्स में पढ़ते हो, तुम्हें लगता है बस बुक के लिए रिलेवेंट है, बट ऐसा नहीं है। तुम जब एक्चुअल इंजीनियरिंग जॉब में जाओगे ना, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है पीएल एसक्यूएल का। तुम्हें, मुझे नहीं पता तुम्हें से कितने लोगों को याद होगी ये चीज, बट पीएल एसक्यूएल ना तुम्हें लिखनी पड़ती है एक्चुअल में। अगर तुम एज अ बैकएंड इंजीनियर कहीं काम करोगे एंड यू आर डीलिंग विद रिलेशनल डेटाबेसेस लाइक माई एसक्यूएल वगैरह, तो तुम्हें पीएल एसक्यूएल वगैरह लिखनी पड़ेगी एक्चुअली, राइट। ऐसा नहीं है वो बस थ्योरेटिकली बस पढ़ाने के लिए था, राइट। इन लिंक्डइन आई लाइक इन माय फर्स्ट मंथ ओनली आई रोट अप्रोक्सीमेटली 10 ऑड पीएल एसक्यूएल स्क्रिप्ट्स। 10 के आसपास मैंने पीएल एसक्यूएल स्क्रिप्ट्स लिखी थी, कुछ को डीबग करा था। और सच बता रहा हूँ, मतलब आई स्टार्टेड एज अ फ्रेशर इन लिंक्डइन। वो एक महीना पीएल एसक्यूएल लिखने का मतलब वो कैंसर था, क्योंकि मैंने खुद भी कभी पीएल एसक्यूएल को इतना सीरियसली कॉलेज में नहीं लिया था और मुझे नहीं पता था वो इतनी सीरियस चीज है। एंड दैट्स द डिफरेंस कि टेक इंडस्ट्री में जो चीजें एक्चुअली यूज होती हैं और जो चीज एक्चुअली में पढ़ाई जाती है उसमें डिफरेंस है। और कभी कभी कुछ अच्छी चीजें भी पढ़ाई जाती हैं बट तुम लोग इग्नोर कर देते हो। दैट इज द थर्ड चैलेंज दैट वी वांट टू एनकाउंटर। ठीक है, और इन तीनों चीजों को ही लेकर हम लोग चल रहे हो। और ये ऐसा नहीं सिर्फ डेव वाले पार्ट पे, डीएसए के पार्ट पे भी तुम देखोगे जो डीएसए के लेक्चर्स हैं उसमें वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ डेप्थ। मतलब बाइनरी सर्च पे 2 क्वेश्चन करने से बेटर है कि बाइनरी सर्च कितने कितने तरीके से लग सकता है, किन किन सिचुएशन में लग सकता है, कैसी कैसी टेक्निक पे लग सकता है, इन सारी चीजों के ऊपर हमने बात करी, राइट। एंड वी हैव द सॉल्यूशन इन फ्रंट ऑफ यू एज AlgoCAD। ठीक है, so I'll just quickly introduce myself. Today we don't have Ria with us due to some technical issues. She is not able to join. Some last moment technical issue came up, but she will be also taking a couple of live lectures starting from the first week only. पहले हफ्ते में ही Ria will be also taking some live lectures, right? So that you guys can get familiar with her as well, right? I'll just quickly introduce myself. Currently, as of now, what is the date? 27th of May. At this point of time, I work as a software engineer 2, level 61 at Microsoft. मैं माइक्रोसॉफ्ट में बिंग एड्स की टीम में हूँ। अब बिंग एड्स क्या है, जैसे तुम्हारे पास गूगल का सर्च इंजन है, तुमने सबने देखा होगा गूगल सर्च, सब लोगों ने गूगल सर्च यूज करा है, सब लोगों ने गूगल सर्च यूज करा है। गूगल सर्च की तरह ही और भी सर्च इंजन है, जैसे बिंग, जैसे डक डक गो। कितने लोगों ने बिंग या डक डक गो यूज करा है? ठीक है, तो अगर तुमने कभी भी बिंग किया है, अगर तुमने कभी भी विंडोज मशीन खरीदी होगी ना, कभी भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम तुमने कोई विंडोज मशीन खरीदी होगी, विंडोज मशीन में जैसे तुम एज जो नया ब्राउजर है माइक्रोसॉफ्ट एज को ओपन करोगे तो एक होम पेज आता है जिसमें बहुत सारी न्यूज वगैरह छपी होती है। देखा है किसी ने एज में? मैं दिखाता हूँ, मतलब हो सकता है कुछ लोग हों जो मैक वाले हों तो उन्होंने एज इंस्टॉल नहीं करा होगा। मेरे भी मैक में एज ऑफ नाउ अभी एज नहीं है, बट अगर तुम जाओगे ना एज होम पेज पे, ठीक है, इसकी अगर मैं तुम्हें इमेजेस दिखाऊं, लेट मी शो यू, तो तुम्हें ना कुछ ऐसा सा इंटरफेस दिखता है, ऐसा ये इंटरफेस तुम्हें दिखेगा, ऐसा सा इंटरफेस दिखेगा तुम्हें एज पे, राइट। हाँ, डिफॉल्ट सेट कर रखा होता है। अब यहाँ पे तुम्हें बहुत सारी न्यूज दिखती हैं और उसी न्यूज के साथ बहुत ही सिंपली एड्स इंटीग्रेटेड होती हैं, उसे ही हम कहते हैं बिंग एड्स। वो एक तरह की एड है, और भी बहुत सारी तरह की एड्स होती हैं जो तुम्हें बिंग में दिखती हैं। ठीक है, मतलब मैं तुम्हें करके दिखा सकता हूँ कि लाइक व्हाट इज बिंग एड्स। मैं इतना इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ ताकि यू ऑल्सो लाइक देयर इज अ पर्सनल कनेक्ट कि मैं एक्चुअली क्या करता हूँ अपनी डे टू डे जॉब में, वो तुम्हें भी पता रहे तो ठीक है, कोई ऐसा सीक्रेट तो है नहीं। तो दिस इज माइक्रोसॉफ्ट बिंग। अब मान लो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ नाइकी एयरफोर्स, ठीक है, ये तुम देख रहे हो, ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ये सब क्या है? एड्स हैं। ये पता है कौन से एड्स हैं? ये बिंग एड्स है, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट जगह पे बिंग ब्राउजर में भी एड्स आते हैं। सो आई एम इन द टीम ऑफ बिंग एड्स। अब ऐसा नहीं कि पूरे बिंग एड्स मैं ही सर्व करता हूँ, तो बिंग एड्स का एक डेडिकेटेड पार्ट है बिलिंग। मैं उसकी बिलिंग साइड पे काम करता हूँ इन द एज ऑफ नाउ मेजरली फोकसिंग ऑन बैक एंड, ठीक है। Prior to Microsoft, I worked with Google. I worked with Google for like 2.5 years और मैं Google पे इंडिया कंज्यूमर एप्लीकेशन टीम में था। तो तुम में से कभी भी किसी ने अगर गूगल पे से पेमेंट करी है, उसमें अगर तुमने क्यूआर स्कैन वाली पेमेंट्स करी है, अगर तुम में से किसी ने यूपीआई लाइट यूज करा है, तुम में से कभी किसी ने स्विगी जोमैटो वाली एप्लीकेशंस में गूगल पे से पेमेंट करी है,
इन सारे पेमेंट फ्लोज में आई हैव कंट्रीब्यूटेड, राइट? तो like our team was the front of everything in Google Pay UPI. When I left Google Pay, the last project that we started working on was Google Pay UPI Lite offline, कि तुम मतलब बिना इंटरनेट के भी टैप से पे कर पाओ, राइट? दैट वाज द लास्ट प्रोजेक्ट दैट वी स्टार्टेड एंड देन आई लेफ्ट, ठीक है? प्रायर टू गूगल आई वर्क विद लिंक्डइन। लिंक्डइन में देयर वाज अ एंटरप्राइज प्रोविजनिंग टीम। शॉर्ट में अगर मैं तुम्हें समझाऊं तो लिंक्डइन पे कभी भी अगर तुम एज अ बिजनेस, मतलब मान लो तुम माइक्रोसॉफ्ट के कोई ओनर हो और तुम्हें लिंक्डइन के लाइसेंसेस चाहिए, लिंक्डइन लर्निंग के, लिंक्डइन सेल्स के, लिंक्डइन रिक्रूटर के, तो वो लाइसेंसेस का जो एलोकेशन डी एलोकेशन होता था वो हमारी टीम देखती थी। Prior to that, I worked with Scalar, previously called as Intervbit as well. वहाँ पे मैंने as an instructor plus as a software engineer काम किया है. So I was in the growth development team, जो भी marketing and growth related products बनाती थी, उस पे हम लोग काम करते थे. And prior to that, I was in the teaching assistant team, जहाँ पे हम लोग teaching assistant dashboards पे काम करते थे. जो भी डाउट रेजोल्यूशन होना है, किस तरीके से होना है, किस तरीके से एल्गोरिथम चलना चाहिए डाउट रेजोल्यूशन का, किसको एलोकेट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. दिस वाज समथिंग दैट आई कंट्रीब्यूटेड टू. गूगल, लिंक्डइन, इंटरव्यूबिट, तीनों जगह आई वर्कड एज अ फुल स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, राइट? I've been like I recently went as a speaker to a couple of conferences. मैं PyCon Italy गया last year, NDC Melbourne गया, PyCon Dubai गया, MEA PyCon MEA, EuroPython गया, React Nexus गया, a lot of international conferences as a speaker I recently attended and met a lot of people. I completed my Google Summer of Code in the year 2019, right? And you can see a couple of more things that I have done since I joined college, so on and so forth, right? So this is a brief about me, that what experience I bring in. If you want to know about the tech stack that I work, तो Google Summer of Code के दौरान मैंने Meteor JS पे काम करा था. Google, when I was working with Google, तो मैंने Flutter front end, Java backend और JS front end पे काम किया था. LinkedIn में I was working with Ember JS front end and Java backend. Scalar में I worked with React front end, Node and Rails backend. At Microsoft, currently I'm working with C#.NET backend. ठीक है? उससे पहले इसरो वगैरह में थोड़ा बहुत पाइथन Node.js वगैरह पे काम किया था. जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था तब काक्चो में आई वाज वर्किंग विद रेल्स, नोड इन द बैकएंड, राइट? फेबल में जब मैं था तो एंगुलर फ्रंट एंड पे काम किया था. तो काफी डिफरेंट टेक स्टैक्स पे काम किया. बट माय मेजर प्राइमरी टेक स्टैक दैट आई से इज लाइक नोड एंड React, like Mon stack I keep main. Along with that, Java Spring Boot, because of Java पे कर लिया है काफी ज़्यादा काम. Also, I'll just quickly introduce Ria as well. Ria is currently working as a software engineer at Microsoft. ठीक है? I don't know if I can tell much about Ria's team details. I believe तुम उससे खुद ही discuss कर सकते हो. But she also contributes a lot on the backend and infra side. Microsoft से पहले she worked at Flipkart. She was, I guess, as a majorly working as a backend engineer only, and tech stack she was working with Java. Right. She also worked with Intervbit and Scalar, and we were together in Scalar as software engineer. She was in a different team. She was in the recruitment software development team, so recruitment related products बनाते थे. She also went as a speaker at PyCon Italy and PyCon Berlin. Right. She also is a former intern at American Express. I'm not sure what she was working with American Express. Again, all team related details तुम उससे direct पूछ सकते हो, and she will be coming in the next steps. ठीक है? Anybody having any questions as of now? इसके कोई सवाल, कोई पूछना चाहते हो? सैलरी छोड़ के जो भी पूछोगे वो तो बता ही देंगे. बाकी डिफॉल्ट सेट कर रखा होता है बिंग ने. यस, इट्स अ डिफॉल्ट थिंग जो मतलब ब्राउजर में सेट करके ही मिलती है. एनीबॉडी हैविंग एनी क्वेश्चंस? डिड यू अप्लाई? यस. ऐसा नहीं होता कि कॉन्फ्रेंसेस तुम्हें खुद से रीच आउट करती हैं, तुम्हें अप्लाई करना पड़ता है. प्रशांत कुमार, यस, आई पार्शियली डू कंट्रीब्यूट. If you have to apply to conferences, like you have to apply there, they will see your profile, they will see how much proficiency you have. मतलब तो मेरी LinkedIn, मतलब if you want to see what talks I gave, तो तुम mostly LinkedIn पे जा सकते हो, and you can also maybe probably like send me a connection request. Okay, so if you go here, I've added my talks. तुम ये देख सकते हो. ये सारी टॉक्स हैं जो मैंने दी थी. ये रिएक्ट नेक्सस पे, यूरोपाइथन, एनडीसी मेलबर्न, PyCon Italy, PyCon MEA, right? So I talked about gRPC's integration with Python, microservices, React Profiler. These are the talks जो मैंने दी. Yes.
कोर्स हम लोग हमारा इंग्लिश में रहेगा, जो भी लाइव क्लासेस होंगी सब इंग्लिश में होंगी। डीएसए वाला पार्ट इंग्लिश में रहेगा, ये ऑलरेडी मेंशन था। बट डोंट वरी, अगर तुम्हें कोई भी चीज में लग रहा है कि डाउट है, क्वेश्चन है, तो तुम वॉइस चैनल पे भी आके, मतलब तुम एक बार पिंग कर दो कि संकेत कैन कम टू वॉइस चैनल, और हम लोग टाइम देख के वी कैन कम एंड रिजॉल्व योर डाउट्स। मैं बात करते हैं अभी कैसे कंटेंट क्या रिजॉल्व होने वाला है। आई एम नॉट श्योर इफ यू रिमेंबर, बट आई थिंक यू टीच at Coding Blocks in Delhi. There you teach my elder brother. He was one of who recommended your course to me. Yes, I used to teach at Coding Blocks as well. Back in 2018, I used to teach offline. ठीक है. Next question. How Bing is different from Google Ads in scalability range? I can't answer that question due to a lot of reasons. कैसे लेक्चर एक्सेस करने हैं, कहाँ पे मिलेंगे, उन सबके ऊपर हम लोग बात करते हैं। भैया आपसे ही पूछना था कि कोर्स, अच्छा ये तो क्वेश्चन हो गया। भैया डिड यू नो द टेक्नोलॉजी बिफोर वर्किंग ऑन द, यू लर्न वाइल वर्किंग। जैसे डॉट नेट है, डॉट नेट में पढ़ते पढ़ते सीख रहा हूँ, मतलब काम करते करते सीख रहा हूँ, ऐसा कहना। सर सेकंड ईयर खत्म हो गया है, आगे ट्रेनिंग लगवानी होगी तो एमएल का सोच रहा हूँ, हाउ टू यूज एमएल इन वेब। मैं तुम्हें कुछ टॉक्स रेफर कर सकता हूँ यूट्यूब पे, मेरा एक दोस्त है बढ़िया टॉक्स देता है। यू कैन रेफर टू हिम और हिज टॉक्स टू गेट मोर अबाउट इट। रेफर प्रोसेस के ऊपर बात करता हूँ, डोंट वरी, जस्ट गिव मी अ मिनट। No, DSA part is recorded. I specifically mentioned that in all of the videos. DSA part will be recorded. The Monstack part will be live. ठीक है, हम लोग बीच बीच में डाउट रेजोल्यूशन सेशन रखने वाले हैं, सो डोंट वरी। हाउ मच यू हैव टू पुट टू लर्न दीज न्यू टेक्नोलॉजीज? यार मतलब डिपेंड करता है कि कितना कॉम्प्लेक्स है, डिपेंड्स किस तरीके से कोर्स एक्सेस करना है। ओके, लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर द कोर्स एक्सेस रिलेटेड क्वेश्चंस ओनली। तो कैन यू गाइस सी माय शेयर्ड स्क्रीन? सब लोगों को मेरी शेयर्ड स्क्रीन दिख रही है? अगर तुम लोग लॉग इन करोगे, जैसे ही तुम courses.algocamp.io/learn पे लॉग इन करोगे अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से, ठीक है, तो यू विल सी दिस काइंड ऑफ अ डैशबोर्ड। तो जो भी तुमने कोर्स खरीदा होगा वो सारे कोर्सेज तुम्हें यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम्हारा मर्नस्टैक का कोर्स है, तो मर्नस्टैक का कोर्स ओपन करोगे क्योंकि तुमने ऑलरेडी खरीद रखा है, तो ये लेक्चर तुम्हें एक्सेसिबल होगा। अब कोर्स के यहाँ पे साइड में तुम देख पा रहे हो, ये तुम्हारे सारे लेक्चर के सेक्शंस होंगे। जिस भी दिन जो भी लेक्चर हो रहा होगा उसके सेक्शन का नंबर तुम्हें बता दिया जाएगा। सब कुछ सीक्वेंस में चलेगा अपार्ट फ्रॉम डीएसए। डीएसए एकदम लास्ट में रहेगा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ डीएसए कैसे एक्सेस करना है, ठीक है। सब कुछ सीक्वेंस में चलेगा। फॉर एग्जांपल आज हमारा पहला कोर्स इंट्रोडक्शन है, नेक्स्ट क्लास जैसे एचटीएमएल पे होगी तो तुम्हें सेक्शन नंबर 2 प्रॉब्ली एचटीएमएल पे दिख जाएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। हर लेक्चर पे जाके तुम लेक्चर को एक्सेस कर पाओगे। उस लेक्चर से रिलेटेड अगर कोई एक्स्ट्रा नोट्स हैं जो हमें देने हैं या फिर कोई लिंक्स वगैरह देने हैं तो हम वो डायरेक्टली यहाँ पे तुम्हें प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर तुम स्क्रॉल डाउन करोगे एकदम थोड़ा एंड की तरफ, अगर तुम जाना शुरू करोगे, ठीक है, ये देखो यहाँ पे सेक्शन नंबर 106 सेक्शन के बाद ये तुम देखो सबसे पहला सेक्शन है, तुम्हें देखेगा डीएसए इन जेएस। इसके नीचे सब कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे। जैसे मैंने कुछ कुछ लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर भी रखे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये एरेस का लेक्चर है, व्हाट इज एन एरे, इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन ऑफ एरे। हम लोग एरे क्लास में भी कर रहे होंगे, बट डीएसए पर्सपेक्टिव से, मतलब तुम ये समझ सकते हो अगर तुम डीएसए किसी और लैंग्वेज में जानते हो, जावा में जानते हो, सी प्लस प्लस में जानते हो, तो भी सब कुछ रेलिवेंट रहेगा। जरूरी नहीं है कि तुम जेएस वाला कोड देखो। जब मैं जेएस का कोड जिस लॉजिक के लिए लिख रहा हूँ तुम उस टाइम पे सी प्लस प्लस का लिख लो या जावा का लिख लो, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू कंज्यूम द कॉन्टेंट, ओके। अब हम लोग क्या रखने वाले हैं, हर वीक हम लोग डीएसए का कुछ पार्ट रिलीज करेंगे, बिकॉज सब कुछ रिकॉर्डेड ऑलरेडी पड़ा है हमारे पास, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमें अभी करना है रिकॉर्ड। क्यों मैं एक ही साथ सब कुछ बम्बार्ड नहीं करना चाहता, उससे कोई सीक्वेंसिंग नहीं बनती, क्योंकि तुम फिर कभी कोई टॉपिक पढ़ोगे कभी कोई टॉपिक पढ़ोगे। इफ यू वांट टू गेट द बेस्ट आउटकम तो हमारी रिकमेंडेशन यही है कि जो लाइव लेक्चर्स हैं, लाइव लेक्चर्स तुम अटेंड करो ही करो। देखो ऐसा हो सकता है मान लो तुमने एक लाइव लेक्चर छोड़ दिया और फिर तुम नेक्स्ट लाइव लेक्चर में सोच रहे हो कि अब मैंने पिछला वाला तो छोड़ दिया, इस वाले में आऊं या ना आऊं। यू शुड डेफिनेटली अटेंड द लाइव लेक्चर। देखो अगर तुमने लाइव लेक्चर अटेंड नहीं करा, अगर तुमने लाइव लेक्चर अटेंड नहीं करा तो क्या होगा, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कि इस लाइव लेक्चर में क्या हुआ। अगर तुमने लाइव लेक्चर अटेंड कर लिया और मान लो पुराने 1-2 सेशन तुम किसी वजह से बीमार थे इसलिए छोड़ दिए थे, तो एटलीस्ट लाइव लेक्चर अटेंड करने से जो बातें हो रही हैं, जो टॉपिक्स चल रहे हैं, एटलीस्ट टॉपिक के नाम तो पता लग जाएंगे ना। टॉपिक का नाम पता लगना ही 10% लर्निंग होती है लेक्चर की। अगर मान लो आज हमें काफका पढ़ना है तो तुम्हें पता लग जाएगा अच्छा काफका है, कुछ क्यू से रिलेटेड है, और अब कैसे हो रहा है वो नहीं समझ में आ रहा क्योंकि पिछली 2 लेक्चर नहीं करे। बट ये तो समझ में आ गया ना, अच्छा काफका कवर हो चुका है, यहाँ पे कवर हुआ है काफका, अच्छा ऐसे कुछ कुछ होता है। 10% भी अगर तुम्हें समझ में आया तो तुम्हारे लिए बेटर है ना। तो लाइव लेक्चर जब भी अटेंड, अनटिल अनलेस बिल्कुल डू एंड डाई सिचुएशन है तब तक लाइव लेक्चर मत छोड़ो। सेकंड थिंग,
जिस भी वीक हम लोग डीएसए का जो भी कंटेंट रिलीज कर रहे हैं, उसी वीक ट्राई करो डीएसए का कंटेंट कवर अप कर लो। मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 5 साल एक्सपीरियंस, 10 साल एक्सपीरियंस, 15 साल एक्सपीरियंस लोग भी जब इंटरव्यू देते हैं डीएसए पूछा जाता है। ठीक है, एक राउंड ही सही, कुछ ना कुछ डीएसए पूछा जाएगा। मुझसे भी मोस्ट ऑफ द कंपनीज में एटलीस्ट 1 राउंड डीएसए का रहा ही रहा है। और डीएसए को ना कवर अप करना फिर मुश्किल हो जाता है बाद में। ठीक है, तो इसलिए मेक श्योर कि जब हम जिस वीक जो भी कंटेंट रिलीज कर रहे हैं डीएसए का रिकॉर्डेड, तुम उसी वीक किसी तरह उसको कवर कर लो। ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते का बैकलॉग रखो, उससे ज्यादा नहीं। ये मेरी रिकमेंडेशन है, बाकी तुम अपने खुद अपनी तरीके से पढ़ सकते हो। किसी भी लैंग्वेज में तुम कोडिंग इंटरव्यूज में कोड लिख सकते हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तुम्हारे लिए जो बेस्ट है तुम वो रखो। मैंने डीएसए इन जेएस इसलिए रखा है क्योंकि डीएसए इन जेएस पे कंटेंट कम होता है। जो लोग फ्रंट एंड ओरिएंटेड है उनके लिए भी थोड़ा बेनिफिशियल रहता है, और क्योंकि पूरे कोर्स में तुम जेएस ही पढ़ रहे होगे तो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू। तो यहाँ पे तुम देखो, ऑलरेडी हमने एरेस का कंटेंट और प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑन एरेस और प्रॉब्लम ऑन 2D एरेस का कंटेंट रिलीज कर रखा है। धीरे धीरे हम लोग सारा का सारा कंटेंट रिलीज करेंगे। इसमें हम लोग बैक ट्रैकिंग, रिकर्जन, डीपी, ग्राफ, हर चीज एंड टू एंड कवर कर रहे होंगे, सो डोंट वरी ऑन दैट। अगर मैं इतना लेक्चर्स कर लूं, कैन आई क्रैक डीएसए इन फैंग कंपनीज? यस यू कैन, आई कैन से दैट। ठीक है, चलो। उसके बाद जो भी तुम्हारे, जैसे आज हमने डिस्कॉर्ड पे तुम्हें लिंक भेजा था, मैं तुम्हें डिस्कॉर्ड भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो डिस्कॉर्ड पे जो तुम्हारा अनाउंसमेंट का सेक्शन है वही तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, ये जो अनाउंसमेंट का सेक्शन है, इस सेक्शन में हम लोग बताएंगे कि आज की जो क्लास है, जब क्लास स्टार्ट होने वाली होगी उसी टाइम में बताऊंगा कि इस सेक्शन के यहां से तुम डैशबोर्ड से लाइव क्लास को एक्सेस कर सकते हो। तुम्हें वीक का शेड्यूल वीक के स्टार्ट में इस तरीके से प्रोवाइड हो जाएगा। तुम कोई भी और ग्रुप चेक करो या ना करो, अनाउंसमेंट का ग्रुप तुम्हें हमेशा रेगुलरली चेक करना है, क्योंकि इसी पे सारी की सारी डिटेल्स आएंगी। बाद में तुम पूछोगे कि इस वीक का शेड्यूल क्या है, लाइव क्लास कहाँ से होनी है, सारी डिटेल्स इसी पे आ रही है। बात समझ में आ रही है? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप है तुम्हारा। मेक सेंस एवरीवन? ठीक है, इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है वो टीए डाउट्स वाला है। तुम्हारे जो भी टेक्निकल डाउट्स है, नॉन टेक्निकल डाउट्स मतलब करियर में आगे कैसे बढ़ना है, पढ़ना कैसे चाहिए, किताबें, रिकमेंडेशन चाहिए, ये सब नॉन टेक्निकल डाउट है। नॉन टेक्निकल डाउट इस ग्रुप में मत डालो, क्योंकि फिर उसके बाद तुम्हारा डाउट ही डिलीट कर दिया जाएगा, 2 से 3 बार के बाद तुम्हें बैन कर दिया जाएगा। नॉन टेक्निकल डाउट तुम जनरल पे डाल सकते हो। टीए डाउट सेक्शन में तुम्हारे सारे टेक्निकल डाउट्स आने चाहिए, क्योंकि ये प्रायोरिटी पे रिजॉल्व होंगे। जनरल पे मैं रिप्लाई करूं या ना करूं, वो टाइम मतलब डिपेंड करता है कि मैं कितना फ्री हूं कितना फ्री नहीं हूं। टीए डाउट्स को हम लोग प्रायोरिटी पे रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अपने टेक्निकल डाउट्स तुम यहाँ रखोगे तो बेटर रहेगा। मेक सेंस? इसके अलावा एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर कि डिस्कॉर्ड पे यू डू नॉट बी रूड टू एनीवन, प्लीज डू नॉट हरास एनीवन। तुम किसी भी तरह की मिसकंडक्ट करोगे कि भाई तुम्हारा आजकल क्या हो रहा है, डिस्कॉर्ड पे अकाउंट हैक हो जाता है, फिर कुछ तो क्रेजी क्रेजी लिंक्स आते हैं। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम अपने अकाउंट का ख्याल नहीं रख सकते तो आई डोंट केयर, मैं उसी टाइम किक आउट कर दूंगा और वापस एंट्री नहीं मिलेगी। वापस तुम कुछ कर लो, कोर्ट चले जाना, तुम हाई कोर्ट चले जाओ, मैं एंट्री वापस नहीं दूंगा। तो किसी भी तरह का मिसकॉन्डक्ट, तुम इनएक्टिव रहो वो बेटर है, बट किसी भी तरह का मिसकॉन्डक्ट डिस्कॉर्ड पे नहीं चलेगा। किसी को भी प्लीज डू नॉट मेक एनीबडी फील कि तुम्हें ज्यादा आता है या उसको कम आता है। वी वांट टू मेक अ हेल्दी कम्युनिटी है, राइट? तो अगर तुम्हें किसी का, अब जैसे किसी का डाउट आया और तुम्हें पता है कि अच्छा इस डाउट का क्या आंसर है, डू रिप्लाई टू दैट डाउट एंड हेल्प ईच अदर एज वेल, क्योंकि दूसरों का डाउट बताने से तुम्हारे डिबगिंग स्किल्स बेटर होते हैं, राइट? हर्ष, और किसी भी डाउट के लिए अगर तुम्हें टीएस को एक्सेस करना है या फिर मुझे एक्सेस करना है, तो तुम @algocam, यहाँ पे तुम्हें एक एलियस मिल जाएगा। वन सेकेंड, लेट मी रिफ्रेश, आई गेस देयर इज सम इंटरनेट इश्यूज। तो @algocam पे, आई गेस दिस डिस्कॉर्ड इज डाउन और समथिंग, बट ठीक है, @algocam को तुम टैग कर दो, मुझे टैग कर दो, एंड @रिया बंसल को टैग कर दो, थिंग्स विल वर्क आउट फाइन। मेक सेंस? कोई ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं है, डाउट पूछने का कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं है। मेक श्योर कि तुम कोड को कॉपी पेस्ट करके मत भेजो, कोड को अच्छे से फॉर्मेट करके या फिर पेस्ट बिन पे पेस्ट करके भेजो। अगर तुम्हारे डेव रिलेटेड डाउट है तो अपने गिट का यूआरएल भेजो। दैट शुड बी समथिंग, वो धीरे धीरे तुम सीख जाओगे, शुड नॉट बी मच ऑफ एन इशू। ओके, मेक सेंस एवरीवन? मैं सारी चीजें अनाउंसमेंट पे भी डाल दूंगा, जस्ट इन केस तुम्हें अगर याद नहीं रहता है ऐसा कुछ है तो। ठीक है, कमिंग बैक, टाइमिंग्स क्या रहेंगी? तो हम लोग मंडे वेंसडे थर्सडे 8 PM विल स्टार्ट। उसके बाद हम लोग देखेंगे 2.5 आवर की क्लास हम लोग करने की कोशिश करेंगे। अगर क्लास किसी दिन लंबी होने वाली होगी तो डोंट वरी, 15 मिनट का मैं कम से कम का ब्रेक भी देता हूँ, क्योंकि मुझे भी सांस चाहिए होती है।
ठीक है। लाइव क्लासेज होंगी, मैं और रिया दोनों ले रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी जो फर्स्ट वीक है, फर्स्ट वीक में जो तुम्हारी क्लासेस है वो रिया स्टार्ट करेगी, राइट। हम लोगों ने इस तरीके से टॉपिक्स को डिस्ट्रीब्यूट करा है कि जहां पे वी फील कि हमारी एक्सपर्टीज ज्यादा है या सामने वाले की एक्सपर्टीज ज्यादा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर बंदा हर चीज इंडस्ट्री में हमेशा काम कर रहा है। मैं 20 साल से काम नहीं कर रहा क्योंकि मेरी उम्र ही 25 साल है, राइट। तो जिस पे हमने ज्यादा काम करा है, जिस पे हमें फील होता है कि हाँ यार इस चीज पे मैंने ज्यादा काम करा है, वी टेक अप दैट। फॉर एग्जाम्पल जैसे काफका है, अब काफका पे मैंने भी काम करा है, काफका पे रिया ने भी काम करा है, बट रिया ने काफका पे मेरे से ज्यादा काम करा है, क्योंकि उसकी जब भी जो प्रोजेक्ट्स आए हैं कहीं ना कहीं काफका से रिलेटेड रहे हैं। मेरे साथ हमेशा ऐसा नहीं हुआ। तो मे भी अगर काफका का लेक्चर है तो आई विल प्रेफर की रियल, क्योंकि शी हैज मोर इनसाइट्स अराउंड काफका। मैंने भी काफका पे काम किया है, काफका पे टॉपिक्स बनाए हैं, टॉपिक्स को कंज्यूम करा है ये वो, बट उसने और नेक्स्ट लेवल चीजें जाके डेड लेटर क्यू वगैरह चीजें भी देखी हुई हैं और भी एडवांस चीजें देखी हैं। सो मे बी शी कैन गिव सम मोर इनसाइट्स अराउंड इट। पोस्टमैन पे मैंने भी काम करा है, पोस्टमैन का यूज करके एपीआईज मैंने भी टेस्ट करी है, रिया ने भी टेस्ट करी है। बट उसकी टीम, उसकी माइक्रोसॉफ्ट में और फ्लिपकार्ट की टीम में पोस्टमैन बहुत ही एडवांस यूज केसेस के साथ चलता था। गूगल में पोस्टमैन एग्जिस्ट करता नहीं था, गूगल में अपने टूल्स होते थे। तो नाउ शी हैज मोर कॉन्टेक्स्ट अराउंड पोस्टमैन। तो ऐसा नहीं है हर चीज मुझे भी आती है या हर चीज उसे भी आती है। सो वी विल बी शफलिंग अराउंड दैट। ठीक है। डीएसए के जो मोस्टली लेक्चर्स हैं, 90-95% जो लेक्चर्स हैं वो मेरे थ्रू ही रिकॉर्डेड है, मेरे थ्रू ही डिलीवर्ड है। तो यू विल गेट 99% डीएसए फ्रॉम मी ओनली। ठीक है। अगर किसी को डिस्कॉर्ड लिंक नहीं मिला है, सो जब से तुमने कोर्स खरीदा है उसके 48 आवर्स में तुम्हें मिल जाएगा, डोंट वरी। राइट, मैं ट्राई करता हूँ कि आज भी एक बार भिजवा दूँ। मेक सेंस? तो आई गेस तुम्हें डिस्कॉर्ड और डाउट क्लियरिंग का सारा आइडिया हो गया होगा। जो टाइमलाइंस हम लोग देख रहे हैं, तो हम लोग फर्स्ट वीक से ही HTML और CSS बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि तुम्हें बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग भी ना लगे। एंड प्रोबेबली जो हम लोग एक एक्सपेक्टेड टाइमलाइन लेके चल रहे हैं, जून 5 के आसपास वी विल स्टार्ट विद द एक्चुअल मीट ऑफ द कोर्स, जावास्क्रिप्ट। हम लोग जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट करेंगे और जावास्क्रिप्ट पे हम लोग अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि 5 क्लासेस में ही जावास्क्रिप्ट में रैप कर दूंगा, क्योंकि मैं ये चीज जानता हूँ कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं बस एक, मैं तुम्हें एक चीज बता सकता हूँ, इस कोहर्ट के बाद तुम्हें फ्रंट एंड ना आए मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, इस कोहर्ट के बाद तुम्हें बैक एंड ना आए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट इस कोहर्ट के बाद तुम्हें जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। जावास्क्रिप्ट हम जितना ज्यादा डेप्थ में पढ़ें उतना बेटर है। मेरे खुद के मेंटर ने मुझे एक चीज सिखाई थी कि फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज तो तुम सीखते जाओगे, बट अगर तुम्हारी लैंग्वेज में पकड़े ना तो फिर एवरीथिंग इज सिंपल। ठीक है। मैंने जब अपनी पहली इंटर्नशिप करी थी एंगुलर की, तब मेरी जावास्क्रिप्ट में इतनी पकड़ नहीं थी, तो मुझे एंगुलर भी बहुत टफ लगता था। वहीं जब मैंने दूसरी इंटर्नशिप करी, वहां पे रिएक्ट और प्लेन जेएस दोनों लिखनी होती थी, बट तब मुझे जावास्क्रिप्ट आती थी एंड थिंग्स बिकेम वेरी इजी फॉर मी। राइट, मतलब अगर कोई मुझे ये कहे ना कि अपनी जॉब में तुम्हें पहला डे जीरो पे बिना किसी से बात करे, बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के कोई बग रिजॉल्व करना है, तो मैं बस ये कहूंगा यार मुझे जावास्क्रिप्ट का कोई बग दे दो जो फ्रंट एंड से रिलेटेड हो या जावास्क्रिप्ट के कोड बेस से रिलेटेड हो। फर्क नहीं पड़ता कि टेक्नोलॉजी क्या है, फ्रेमवर्क क्या है, लाइब्रेरी क्या है। आई वॉन्ट यू गाइस टू बी दैट गुड, आर एबल टू गेट दिस पॉइंट। ठीक है। और ये वाली टेक्निक जो जो ये जो टेक्निक है ना कि तुम्हारा लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी आ रही है, ये तुम्हारे एक दूसरे के डाउट्स को आंसर करके भी बहुत ज्यादा आता है। तो आई वर्क एज अ टीचिंग असिस्टेंट एज वेल वे अर्लियर इन फर्स्ट ईयर। जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मैंने एज अ टीचिंग असिस्टेंट भी एक दो जगह काम करा। उससे दूसरों, क्योंकि सबसे बेस्ट क्या होता है ना, दूसरों के कोड का कॉन्टेक्स्ट नहीं होता, तो जब तुम दूसरों का कोड पढ़ के रिजॉल्व करते हो ना, उससे तुम्हारी डिबगिंग स्किल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। सो दैट इज समथिंग दैट यू शुड ऑल्सो डू। ठीक है। उसके बाद हम लोग CS फंडामेंटल्स का भी पार्ट प्रॉब्ली एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, राइट। आई गेस यहाँ पे डेट सही डली होनी चाहिए, आई रेक्टिफाई द डेट है। ठीक है, ये डेट शायद गलत डली है। ओके। CS फंडामेंटल्स में वी विल वर्क विद लेट्स से लिनक्स। हम देखेंगे कि तुम लिनक्स वगैरह पे कैसे काम कर सकते हो। मैं अभी विंडोज सीख रहा हूँ, तो मे भी विंडोज CLI पे भी मैं कुछ अपलोड कर दूं, बट अभी मैं कुछ गारंटी नहीं देता, क्योंकि मैं भी विंडोज पे सीख रहा हूँ। मैंने 11th क्लास के बाद अब इस साल मार्च से ही विंडोज यूज करना शुरू किया है, सो आई एम ऑल्सो गेटिंग अ हैंग ऑफ इट। इसमें जैसे तुम्हारा कंप्यूटर नेटवर्क वाला पार्ट है, गिटहब वाला पार्ट है, ये सारा पार्ट तुम्हारा CS फंडामेंटल्स में आएगा, जो तुम्हारे फ्रंट एंड बैक एंड की जर्नी में इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज काइंड ऑफ लाइक अ हार्ड डेडलाइन दैट वी आर लुकिंग एट, जहां पे हम लोग फ्रंट एंड स्टार्ट करेंगे विद रिएक्ट जेएस एंड समवेयर अराउंड इन अक्टूबर इस पे हम लोग 3 महीने के आसपास स्पेंड करेंगे। एंड समवेयर अराउंड इन अक्टूबर वी विल स्टार्ट विद बैक एंड डेवलप्स। बात समझ में आ रही है सबको? हो सकता है इसको जल्दी भी खत्म कर ले, बट किसी भी चीज में रश करने का हमारा ऐसा कोई मूड नहीं है, बिकॉज वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। हफ्ते की 3 लाइव क्लासेस हमारे पास एटलीस्ट है ही है, और अगर हमें कोई डाउट सेशन रखने होंगे तो हम उसके अलावा या उन्हीं 3 क्लासेस में भी रख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ फास्ट वी आर गोइंग और हाउ स्लो वी आर गोइंग। मेक सेंस एवरीवन? ठीक है। किसी भी चीज में एटलीस्ट वी डोंट गिव अ लॉट ऑफ रश। अगर हमें रियलाइज होता है कि बच्चों को पढ़ने के लिए कोई टाइम चाहिए, वी गिव इनफ ब्रेक ऑल्सो।
बीच में एक ऐसा टाइम आएगा जब हम तुम्हें एक हफ्ते का ब्रेक भी देंगे, ताकि तुम्हारा जो भी बैकलॉग है वो तुम कवर कर पाओ, राइट। एंड जो करियर प्रोग्रेशन जो हम लोग देखते हैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तुम फुल स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, राइट। कोर्स करने के बाद यू विल बी एलिजिबल फॉर अ फुल स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल, यू विल बी एलिजिबल फॉर अ बैक एंड स्पेसिफिक और अ फ्रंट एंड स्पेसिफिक रोल एज वेल, राइट। क्योंकि अभी तक एल्गो कैंप पे हम लोग एडवांस बैकएंड और एडवांस फ्रंट एंड के कोर्स भी करते थे। दिस कोर्स इज गोइंग टू बी अ क्लब ऑफ दैट। इस कोर्स में ऐसा नहीं है कि एडवांस फ्रंट एंड या एडवांस बैकएंड से कुछ कम पढ़ाया जाएगा, इट विल बी ऑल सेम, राइट। सीएसएस की ड्यूरेशन ऐसा नहीं है कि स्मॉल है। यहाँ पे तुम्हें ऐसा लग रहा होगा सीएसएस ड्यूरेशन स्मॉल है, बट जब हम लोग जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे ना, तब भी हमें कुछ कुछ एप्स बनानी होगी, राइट। तब भी सीएसएस तुम पढ़ रहे हो, ठीक है। और इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से, अगर तुम इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से देखो, तो एचटीएमएल और सीएसएस लीस्ट रेलिवेंट होते हैं, राइट। क्योंकि डिजाइनिंग तुम्हारा काम नहीं होता। देर इज अ रोल कॉल्ड एज यूआई यूएक्स डेवलपर। तुम्हें यूआई यूएक्स डेवलपर्स होते हैं टीम के, वो एक्चुअल में तुम्हें पूरा का पूरा डिजाइन देते हैं, तुम्हें उसको कॉपी पेस्ट करना होता है। वो कलर्स वगैरह भी डिफाइन करके देते हैं, फॉन्ट का साइज भी डिफाइन करके देते हैं, तो तुम्हें बहुत मेहनत नहीं करनी होती है। इसलिए इंटरव्यू में भी अगर तुम जाओगे तो इसके बाद का ही पार्ट पूछा जाता है। मेक सेंस? ठीक लग रहा है? सो यू विल बी एलिजिबल फॉर बैक एंड फ्रंट एंड रोल्स। बैक एंड रोल्स के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होगा वो तुम्हारा नोड और बैक एंड का पार्ट और डीएसए का पार्ट होगा, राइट। और हम लोग थोड़ा बहुत डिजाइन का पार्ट भी इसी बैक एंड के पार्ट के साथ देखेंगे, किस तरीके से तुम स्केलेबल सिस्टम्स डिजाइन कर सकते हो। फ्रंट एंड इंजीनियरिंग रोल्स, अगर स्पेसिफिक फ्रंट एंड के इंजीनियरिंग के रोल्स टारगेट कर रहे हो, तो डीएसए और रिएक्ट वाला पार्ट तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा, एंड प्लस जेएस वाला पार्ट, ऑफ कोर्स प्लस जेएस वाला पार्ट, ठीक है। बिफोर आई टेक अप मोर क्वेश्चंस, वन थिंग इज, अगर तुम, मतलब इट्स अ सिंपल इक्वेशन, आई बिलीव काफी लोगों को पढ़ के समझ में भी आ रहा होगा, कि अगर तुम हर दिन 1% भी खुद को इंप्रूव करते हो, दिस इज द ओवरऑल इम्पैक्ट दैट यू क्रिएट। तो ऐसा नहीं है कि तुम शुरू के एक हफ्ते बहुत ज्यादा पढ़ लो, लास्ट के एक हफ्ते बहुत कम पढ़ो। मेक श्योर कि तुम हर हफ्ते कंसिस्टेंटली प्रोग्रेस करो। शुरू में ही बहुत ज्यादा थकान लेने की जरूरत नहीं है। देयर विल बी दिस, इट्स अ लॉन्ग कोर्स, सो मेक श्योर यू हैव इनफ एनर्जी लेफ्ट टिल द एंड ऑफ द कोर्स। मेक सेंस? स्टे कंसिस्टेंट। किसी हफ्ते ज्यादा किसी हफ्ते कम चलता है, किसी हफ्ते ना करना नहीं चलेगा, इट्स लाइक दैट, ठीक है। टाइम फॉर क्वेश्चंस गाइस, आई कैन टेक अप क्वेश्चंस नाउ। ठीक है, नाउ बात करते हैं जो रेफरल वाला पर्सपेक्टिव था, कि रेफरेंस वाली चीज कैसे सॉर्ट हो रही होगी, राइट। सो आई ट्राई टू मेक श्योर कि आई ट्राई टू रेफर, सॉरी, आई ट्राई टू रेफर 5 to 6 पीप्स, राइट। एटलीस्ट एक रेफरल मैं ट्राई करूं कि, लेट से अगर ओपनिंग आ रखी है फॉर एग्जांपल अडोबी में, तो आई हैव रियली गुड फ्रेंड्स इन अडोबी। अगर मान लो ओपनिंग आ रखी है गूगल में, ऐसा नहीं कि तुम मेरे को कोई कंपनी ला के दो और मैं वहां का रेफरल ले आऊंगा, क्योंकि मेरे दोस्त भी होने चाहिए वहाँ। इट्स ऑल अबाउट द कनेक्शन दैट आई हैव। क्योंकि ये चीज मैंने जरूर एस्टेब्लिश करी है कि किसी भी कंपनी के जो मेरे दोस्त हैं या जो मेरे जानकार हैं, अगर मैं उनको किसी का रिज्यूमे देता हूँ ना, तो वो सवाल नहीं करते कि ये कौन है, क्यों है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा रिज्यूमे, नहीं बढ़िया लग रहा है, नहीं लग रहा। अगर मैंने रिज्यूमे दिया है और पोजीशन है, तो दे डेफिनेटली रेफर। तो ये जो 5 से 6 लोग हैं, इनको 3 से 4 मैट्रिक्स पे मैं इवेलुएट करूंगा। पहली, कंसिस्टेंसी इन लाइव क्लासेस, कि तुम कितनी लाइव क्लासेस में आ रहे हो सकता है तुम्हें सब कुछ आता है, हो सकता है तुम्हें पूरा मॉन स्टैक शायद मेरे से भी ज्यादा आता है, बट तो तुम क्यों हो यहाँ पे? तो तुम्हारे ऑलरेडी तुम्हारे पास बहुत सारे जॉब ऑफर होने चाहिए, राइट। लाइव क्लास में आने से मुझे एटलीस्ट ये दिखेगा कि यार बंदे को एटलीस्ट टॉपिक तो पता है ना, समझ में उसे कितना आ रहा है। अभी तो वो सब चीजें बाकी के इवैल्यूएशन से पता लगेंगी, बट एटलीस्ट दिस पर्सन नोज हाउ टू बी कंसिस्टेंट। ये चीज लाइव क्लासेस की कंसिस्टेंसी से हम लोग फिगर आउट कर लेंगे, राइट। क्योंकि आगे चलते चलते अटेंडेंस डिक्रीज होती है, तो बंदों को याद रखना मुश्किल नहीं होता। सेकंड थिंग, जो भी हम लोग होमवर्क या असाइनमेंट दे रहे हैं, उसमें किस तरीके से तुम पीआर रेस कर रहे हो, कितना साफ सुथरा कोड लिख रहे हो, क्लास में तुम्हारे क्वेश्चंस कितने सही हैं, तुम दूसरों का डाउट कितना, मतलब अगर किसी और का डाउट है और तुम्हें वो डाउट आता है, हमें भी पता है कि यार तुम क्लास में सीख रहे हो, तुम क्लास में तो रिप्लाई दे देते हो, बट तुम ग्रुप पे किसी की हेल्प नहीं कर रहे, कितना तुम कम्युनिटी में डाउट सॉल्विंग वगैरह भी हेल्प, दूसरों की हेल्प कर रहे हो, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ मेट्रिक, राइट। कितने तुमने होमवर्क करे हैं, और जो 3 मेजर प्रोजेक्ट होंगे, उन प्रोजेक्ट्स पे तुम्हारी क्या प्रोग्रेस है, राइट। कितनी तुम्हारी कंसिस्टेंसी, तो तुमने ये प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। इन सारे मेट्रिक्स को लेके आई फिगर आउट 4 to 5 पीपल, उनको मैं खुद से ही मैसेज कर दूंगा, और उनको रेफरल जब मैं दे दूंगा, उसके बाद मैं उन्हें खुद बोल दूंगा भाई ग्रुप पे डाल दो, ताकि सबको ऑथेंटिसिटी प्रॉपर लगे, ऐसा ना लगे कि इट वॉज फेक, राइट। पहले भी बता दे, दोबारा बता देता हूँ, रेफरल का मतलब जॉब ऑफर नहीं होता, रेफरल का मतलब इंटरव्यू कॉल नहीं होता, राइट। तुम जिस कंपनी में, मान लो मैं तुम्हें अडोबी में रेफर करूं, जिस पोजीशन के लिए मैं रेफर करूं, बट जो रिक्रूटर है या इंजीनियरिंग मैनेजर है, उनको तुमसे बेटर या तुमसे कम वाला बंदा चाहिए, देन यू विल नॉट गेट अ कॉल।
बट अभी के टाइम पे प्रॉब्लम क्या हो गई है, क्योंकि सबको पता है कि रेफरल्स चाहिए होते हैं, लोगों को अब रेफरल भी मिलना बहुत मुश्किल है। बट अगर मुझे पता है कि यार ये 5 से 6 लोग मतलब हर लाइव क्लास में आए हैं, सारे प्रोजेक्ट इन्होंने बनाए हैं, दूसरों के डाउट देखते ही रिजॉल्व कर लेते हैं, तो डिबगिंग स्किल्स तोड़ू फोटू है, राइट, पीआरस में कोड की क्वालिटी दिख रही है, तो मतलब मैं अपनी तरफ से एक एफर्ट तो कर ही सकता हूँ ना। वर्स्ट केस, अब जैसे गूगल का रेफरल होता है, गूगल का अगर तुम्हें रेफरल मिलता है तो तुम एक महीने में उस रेफरल से 3 पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हो। अब 3 पोजीशन पे अप्लाई करने के बाद भी तुम्हें कॉल नहीं आ रही है, उसका ये रीजन भी हो सकता है कि मतलब जो तुम्हारी प्रोफाइल है वो उनके लिए सूटेबल नहीं है। मे बी जो प्रोफाइल है वो C++ डेवलपर की ज्यादा है, तुम मंस्टैक डेवलपर हो, तो दैट विल बी अ प्रॉब्लम, राइट। बट एटलीस्ट आई ट्राई टू मेक श्योर कि कम से कम एक रेफरल बिग टेक या फिर एक एस्टैब्लिश स्टार्टअप में हो, राइट। मतलब अभी एक फ्रंट एंड का बैच ऑलरेडी चल रहा है, वी आर अबाउट टू एंड इट, और उसके हमें रेफरल्स स्टार्ट करने थे, बट उससे पहले ही एक मेरा फ्रेंड है उसने अपना स्टार्टअप शुरू करा, तो उसके लिए उसको एक इंटर्न चाहिए था, एंड देयर वाज वन गाय हु वाज लाइक थ्रू आउट कंसिस्टेंट, मैंने उसको रेफर किया एंड ही गॉट सिलेक्टेड, राइट। अब ये वैसे रेफरल में काउंट नहीं होता, बट क्योंकि मुझे पता है कि परफॉर्मेंस बढ़िया है तो मैंने वैसे ही रेफर कर दिया, राइट। तो जो स्टार्टअप्स वगैरह के वैसे रेफरल आएंगे वो तो मैं मतलब, या फिर मुझे पता है कि हायरिंग आ रही है, आई डेफिनेटली वाउच फॉर अ कपल ऑफ पीपल। बट तुम्हारी कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा मैटर करेगी, मतलब हो सकता है तुम्हें किसी और को नोट तुमसे ज्यादा आती हो, बट तुम क्योंकि कंसिस्टेंट थे यू क्वालिफाई बेटर फॉर द रेफरल। तो ये चीज रेफरल वाले पार्ट पे चलेगी। मेक सेंस एवरीवन? यार मैं डेफिनेटली बैक एंड वाला पार्ट शुरू करते करते मेरे को फिगर आउट हो जाएगा कि हु आर द पीपल हु शुड बी एबल टू, क्योंकि मैं उन्हीं लोगों को रेफर करना चाहूंगा जिनको अगर कॉल आ गई वो इंटरव्यू फोड़ भी देना, वो भी तो सिनेरियो है। भाई बिगनर्स तो इतना हेल्प नहीं कर सकता ना डिस्कॉर्ड में, बिल्कुल सही बात है, बट अगर मैंने HTML पढ़ा दिया, डाउट HTML का है, तुमने HTML पढ़ लिया, तुमने ढंग से पढ़ लिया, और तुम्हें वो पार्ट आता है, तो तुम रिजॉल्व कर सकते हो ना। काफी लंबी जर्नी है, समझ रहे हो, काफी ज्यादा लंबी जर्नी है। और दूसरों मतलब दिस इज नॉट वन पैरामीटर ना, बाकी पैरामीटर्स भी ना, तुम लाइव क्लास में कितना आ रहे हो, तुमने अपना होमवर्क करो, चलो ये मत करो, अपना होमवर्क तमीज से करो, सारे प्रोजेक्ट सही से बनाओ, दैट विल बी समथिंग ना। डिस्कॉर्ड चलाना अगर नहीं आता तो यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देखो गाइस, खुद की हेल्प करना सीखो, यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देखो कि डिस्कॉर्ड, व्हाट्सएप अगर चलाना आता है तो डिस्कॉर्ड चलाना भी सेम ही होता है, अगर व्हाट्सएप चलाना भी नहीं आता है तो पहले व्हाट्सएप चलाना सीख लो, ये मैं कहूँगा। ऐसा नहीं है कि असाइनमेंट डिफरेंट होंगे, इट विल बी अ कॉमन असाइनमेंट। राजमन, हम लोग इतना ज्यादा नहीं कर पाएंगे क्योंकि हर कॉलेज के ना डिफरेंट टाइम पे होते हैं, बट एक हफ्ता ब्रेक बीच में रखेंगे, दो दो सेक्शंस के बाद, बट विल नोटिफाई यू, ठीक है। हर क्लास की तुम्हें रिकॉर्डिंग मिलेगी गाइस, हर क्लास की तुम्हें रिकॉर्डिंग मिल रही होगी, राइट, सो मेक श्योर यू वॉच दैट एज वेल। मुरली, अंजू, वी कैन टेक अ वोट ऑल्सो, हम लोग वोट ले सकते हैं उस चीज के लिए, डोंट वरी। मतलब मेरे को वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 8 to 10 मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए प्रेफरेबल टाइम था, सो दैट्स व्हाई वी केम। और मेन है कि 9 से मैं कर सकता हूँ, बट अगर 9 से मेरे को एक्सटेंड करना है ना, मतलब कभी कभी क्या होता है कि किसी का डाउट है, अब डाउट सोल्यूशन फिर 11 बजे के बाद करना पड़ता है, क्योंकि 9 से 11 हम क्लास लेंगे, और फिर 11 बजे बैठ के फिर उसके बाद उन बच्चों का डाउट लेना पड़ता है, तो उन बच्चों के लिए लेट हो जाता है क्योंकि अगले दिन उनका कॉलेज होता है, राइट। 8 to 10 वाला हिसाब ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि फिर वो 10 के बाद वाले टाइम में हम डाउट ले सकते हैं, इसलिए 8 to 10 करा हुआ है। फॉर बिगनर्स स्टे कंसिस्टेंट, अगर तुम बिगनर हो, तुम्हें पता है तुम बिगनर हो, तो बिगनर का एक ही इलाज होता है इंटरमीडिएट बनना है और एडवांस बनने के लिए, कि स्टे कंसिस्टेंट। हर लेक्चर का अपलोड तुम्हें नोटिफिकेशन पे मिल जाएगा, इस वेडनेसडे तुम्हें मैं डीएसए के इनिशियल सेट ऑफ सेक्शंस जो डाल दिए वो नोटिफाई कर। डीएसए एंड डेव दोनों साथ में कैसे करेंगे, तुम पूरा कॉलेज साथ में कर लेते हो, कॉलेज के साथ मस्ती साथ में कर लेते हो, 11th 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ साथ में कर लेते थे, डीएसए एंड डेव फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कंबाइंड से बहुत ईजी है। डोंट वरी, अगर सीएसएस बहुत टफ लगता है, विल ट्राई टू मेक श्योर कि हम थोड़ा फन वे में सीखें, और इतना ज्यादा लोड मत लो, सीएसएस इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती, ठीक है। प्लस गाइस एक काम कर सकते हैं, कुछ लोग जैसे 8 to 10 डिमांड कर रहे हैं, कुछ लोग 9 to 11 डिमांड कर रहे हैं, हम लोग 8:30 रख सकते हैं, दैट इट विल बी बोथ गुड फॉर बोथ द वर्ल्ड्स, ताकि 8 to 10:30 टाइप हम लोग क्लास रख लें, और अगर उसके बाद कोई डाउट्स हैं तो 10:30 to 11 मिले, दिस इज समथिंग दैट वी कैन डू, थोड़ा डेमोक्रेसी करेंगे, ओके। मेक सेंस, तो कुछ 8:30 टाइप रख लेते हैं, वोट करा लूंगा मैं, देखता हूँ डिस्कॉर्ड पे भी वी कैन डू अ वोट, या फिर 8:30 टाइप रख लेते हैं, डिस्कस विद रिया एंड देन लेट यू नो, ठीक लग रहा है। सो आई बिलीव
आई बिलीव सारे क्वेश्चंस मैंने आंसर कर दिए होंगे. इफ यू हैव एनी नॉन टेक्निकल क्वेश्चन रिगार्डिंग हाउ टू प्रोसीड विद द कोर्स, मेक श्योर यू पुट दैट इन द जनरल सेक्शन. ठीक है, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ दिस. ठीक है, इस क्लास की समरी आई विल पुट इन द अनाउंसमेंट सेक्शन बाय मिडनाइट कि क्या क्या चीजें तुम्हें ध्यान में लेके चलनी है. ये पीपीटी भी मैं अनाउंसमेंट सेक्शन पे डाल दूंगा. सारे जो भी हम लोग क्लास में नोट्स करेंगे, यू विल गेट इट वेरी रेगुलरली ऑल टुगेदर. कुछ पार्ट एचएलडी का कवर करेंगे, डोंट वरी. मतलब अगर कोई ऐसी चीज है जो पहले से प्रॉमिस नहीं थी और तुम्हें चाहिए तो मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में डाल दूंगा, तुम वैसे देख लेना. इट्स लाइक दैट. जो अभी एज सच एज ऑफ नाउ जो भी कुछ प्रॉमिस है वो सब कुछ डैशबोर्ड पे है. अगर तुम्हें कुछ लगेगा कि सर ये कुछ ऐसा एचएलडी का भी कुछ डाल दो, तो कुछ रिकॉर्डेड पार्ट में डाल दूंगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं. मेक सेंस गाइस? सो दिस वाज द इंट्रोडक्टरी सेशन. इसको बहुत ज्यादा लंबा या कॉम्प्लेक्स नहीं रखना चाहता हूं मैं. यस, रिएक्ट 19 की कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं दैट वी विल आल्सो टॉक अबाउट दिस. मेक सेंस? ठीक है, दैट बीइंग सेड इस लेक्चर को यहाँ पे रैप अप करते हैं. नेक्स्ट क्लास तुम्हारी वेंसडे से होगी. वेंसडे से यू विल स्टार्ट विद एचटीएमएल, राइट? रिया विल बी जॉइनिंग अस ऑन वेंसडे. शी विल बी टेकिंग द इनिशियल वीक लेक्चर्स, राइट? तो काफी ज्यादा मजा आएगा. स्टे ट्यून फॉर दैट. दैट बीइंग सेड इस पर्टिकुलर लेक्चर को यहीं पर रैप अप करते हैं. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, फील फ्री टू आस्क योर क्वेश्चंस इन द डाउट सेक्शन and post them in the general section until unless we have a technical question. That being said, we'll wrap up this session here. We'll meet soon in the next set of sessions, guys. And yes, Anju, you can start with the DSA part. अगर तुम्हें थोड़ा बहुत कोडिंग किसी भी लैंग्वेज में आती है तो I don't have a problem with that. ठीक है? Sure, I'll send the Discord link for all those who have recent Anju. Thank you guys. Bye bye. Stay tuned for the remaining set of lectures. I'm really excited. Samir, I already told you कि कहाँ पे मिलेगा. लेक्चर फिर से देखो, तुमने ध्यान नहीं दिया लेक्चर में तो इसलिए तुम्हें नहीं पता है. आई टोल्ड यू सेक्शन 106 के बाद से टाइम पे आना है गाइस. लेक्चर में टाइम पे आना है वरना दिक्कत होगी. मेक सेंस गाइस? चलो ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेडनेसडे. विल बी हैविंग आवर फर्स्ट क्लास ऑन वेडनेसडे. काफी मजा आएगा. हम काफी सारी हैंड्स ऑन एक्टिविटी करेंगे. आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस. आई होप यू गाइस आर टू. दैट बीइंग सेड, लेट्स स्टार्ट टुडेस सेशन हियर. वी आर गोइंग टू मीट सून इन द नेक्स्ट सेट ऑफ सेशंस एंड स्टार्ट आवर जर्नी ऑन OneStack. टिल देन टेक केयर गाइस. बाय बाय. हैव अ ग्रेट वीक अहेड एंड कीप कोडिंग. श्योर आदित्य, एक बार पिंग करो. मैं तुम्हें कुछ कॉन्फ्रेंसेस के लिंक